Good morning, students. Today we are moving to the third lecture of our fourth chapter, that is Consumers Equilibrium in Difference Curve Analysis. आज हम लर्न करेंगे अटेनेबल कॉम्बिनेशन एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन. So attainable combinations are those combinations which are falling under the budget line, and non-attainable combinations are which are above the budget line. So attainable combinations वो होते हैं जो budget line के अंडर होते हैं, हम परचेज कर सकते हैं, and non-attainable combination वो हो गए जो हम परचेज नहीं कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो 100 रुपीज़ के नीचे आने वाली कोई भी चीज़ आपके लिए क्या है, अटेनेबल, और above 100 rupees क्या है, non attainable. Let's have a look on that. So this is the budget line. Fine. So this line is called, as I've explained you earlier, that this line is called budget line. What is this? Budget line. Fine. And this is y axis and y goods, एक्स एक्सेस एंड एक्स गुड्स. सो ये जो डॉट आप देख रहे हो ये क्या है, हमारे अटेनेबल गुड्स हैं. क्यों? क्योंकि ये हमारी बजट लाइन के अंदर आ रहे हैं. ठीक है. ये क्या है, अनअटेनेबल गुड्स. क्यों? क्योंकि ये बजट लाइन के क्या है, बाहर हैं. Now we are moving to the most important topic of the chapter, that is consumers equilibrium using IC analysis. हमने consumers equilibrium करना है indifference curve analysis के साथ में. Now the question is how? We can do it by IC plus budget line. So हमने indifference curve और budget line को connect कर देना है, add कर देना है, इकट्ठा कर देना है. Now you would be wondering like how you can do that. See, this is how you can do that. Indifference curve plus budget line. So what is this? This is budget line and this is indifference curve. So ये अब क्या बन गया हमारा, consumer equilibrium using IC analysis. Now the point is that how we can do the consumer equilibrium. So for that we are having conditions. So conditions for equilibrium. So for conditions we have to remember few points. So first is IC, that is indifference curve is always sloping down. As you all know that the indifference curve is always downwards. क्यों ये downwards होती है? Because we are sacrificing one good in case of increasing another good. Second condition is MRS is equals to PX by PY. Now what is this? MRS is marginal rate of substitution. MRS is slope of IC. So marginal rate of substitution क्या है? IC, indifference curve का slope. PX by PY is slope of budget line. So MRS क्या है हमारा, indifference curve, and PX by PY is budget line. So this makes what? MRS is equals to PXY. So हमारी second condition क्या है consumer equilibrium की, that MRS जो होगा वो P by X के is equal होगा, यानी कि हमारी जो indifference curve है वो budget line के equal होगी. So budget line you all know, it is a straight line showing combination of two different goods. So you all know about this thing, then as well I'm showing you that IC plus budget line. So the curve is always downwards as we are sacrificing the one good, and budget line, this shows the expenses. So हमारी second condition क्या है, MRS जो कि equal रहेगा P by X के. So IC is equals to budget line. You have to write slope here. It is important for you. After this, when we combined IC and budget line, the another thing is equilibrium point. Now what is that? So this is how you will combine your budget line and IC. So this is consumer equilibrium. The point where IC and budget line is intersecting, that is called
equilibrium point. The point where IC and budget line are intersecting is called equilibrium point. A point where IC and budget line are intersecting is also called tangent. Tangent आप सबने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जहाँ पर सर्कल किसी एक लाइन को इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री एंगल पर, उस जगह को क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? टेंजेंट होना चाहिए। Now we are again coming to the conditions of IC, that there are two conditions for equilibrium. First is MRS is equals to PXY, that is the slope of IC is equals to the slope of budget line. Now the another combination or condition you can say that on equilibrium point the curve is convex to the point of equilibrium. So अब हमने यहाँ क्या देखना है? First condition was PX by PY. Fine. MRS is equals to PX by PY, यानी कि हमारी जो IC है वो बजट लाइन के इक्वल होनी चाहिए। तो सेकेंड हमारी कंडीशन क्या है कि जो हमारी IC है एंड बजट लाइन है वो क्या होनी चाहिए? कॉन्वेक्स। सो बजट लाइन कैसे? दिस इज बजट लाइन एंड दिस इज IC, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। So on equilibrium point the curve is convex to the point of इक्विलिब्रियम। तो जो हमारी कर्व है वो क्या होनी चाहिए? कॉन्वेक्स होनी चाहिए। अगर ये कॉन्वेक्स है तभी ये इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस को टच करेगी। लेट्स रिवाइज द कंडीशंस। IC इज इक्वल्स टू बजट लाइन एंड ऑन इक्विलिब्रियम पॉइंट द कर्व इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जहाँ पर हमारी कर्व इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या होनी चाहिए? बिगिनिंग टू एंड तक क्या होनी चाहिए? कॉन्वेक्स होनी चाहिए। नाउ अनदर थिंग दैट व्हाट इफ वी आर हैविंग टू कर्व्स। अगर हमारे पास दो IC कर्व्स हैं, वहाँ पर हम कैसे देखेंगे कि वो इक्विलिब्रियम है या नहीं है? लेट्स हैव अ लुक। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम। वी आर हैविंग two curves. This is IC1 and this is IC2. This point is called equilibrium point. This is IC, I have explained you. This line is called budget line. Fine. So हमारी conditions क्या थी? हमने अपनी conditions देखनी है। First, MRS is equals to PXY. That is, it is intersecting. Yes. Our IC2 is also intersecting here and our IC1 is also intersecting at 2 points A and B. So अब दोनों curves की condition 1 तो match हो रही है। Now the condition 2 is convex to the equilibrium point. अब हमने देखना है हमारी IC2 इक्विलिब्रियम पॉइंट तक कन्वेक्स है, बट हमारी जो IC1 है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कहीं पर भी कॉन्वेक्स नहीं है। दैट मीन्स हमारी जो कंडीशन 2 है IC1 की वो क्या है? एप्रोप्रिएट नहीं है। सो दिस मीन्स दैट आर IC2 इज द एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम कर्व। फाइन। सो दिस इज हाउ यू कैन सी दैट वेदर or which of the curve is intersecting or not, or meeting the points of equilibrium or not. Fine, I'll go again. अगर हमारे पास दो कर्व्स हैं तो हमने ये देखना है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रही है क्या वो वहाँ पर कॉन्वेक्स है? उसका जो शेप है वो किस तरह का? आप यहाँ देखिए। सो दिस इज हाउ इट इज़ कमिंग डाउन। ये एक कर्व आ रहा है इसमें, ठीक है। कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव। सो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारी कर्व की शेप है वो क्या है? कॉन्वेक्स है। सी, यू कैन रिलेट हियर। ये देखिए, जैसे यहाँ पर एक कर्व आ रहा है वैसे ही यहाँ पर भी एक कर्व आ रहा है, बट जो हमारी IC1 है इसमें कोई भी कर्व आ ही नहीं रहा है। इट इज़ नीदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, बट आर IC2 इज कॉन्वेक्स। सो आई होप आप समझ गए हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव के बीच में डिफरेंस। नाउ वी लर्न अबाउट दी बजट लाइन और प्राइस लाइन। तो बजट लाइन और प्राइस लाइन होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें बताती है एक
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस चीज का? बजट सेट का. व्हाट इट इज? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट. सेकेंड, इनकम इज गिवन. कंज्यूमर के पास इनकम गिवन होगी. जो बजट लाइन है वो हमेशा डाउनवर्ड ही स्लोप करेगी, जैसे कि हमारी पीपीसी एंड आईसी में होता है. फोर्थ इज स्लोप इज डिक्रीजिंग एज इनकम इज गिवन. स्लोप क्यों डिक्रीज कर रहा है? बिकॉज जो इनकम है हमें गिवन है. एंड फिफ्थ, इफ वी वांट टू इंक्रीज गुड वाई देन वी हैव टू सेक्रीफाइस गुड एक्स. अगर हमें गुड वाई को इंक्रीज करना है देन वी हैव टू डिक्रीज दी गुड एक्स. एंड ये रूल हमारा पीपीसी एंड आईसी में भी इम्प्लीकेबल है. फाइन. सो लेट्स सम अप द थिंग. प्राइस लाइन और बजट लाइन क्या होती है? एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. किस चीज का? बजट सेट का. सेकेंड इज इनकम इज गिवन टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर के पास इनकम है. जो इसका स्लोप है वो कहाँ होगा? डाउनवर्ड्स होगा. स्लोप डाउनवर्ड्स क्यों है? बिकॉज इनकम इज गिवन. इफ इन एनी केस अगर हमें किसी एक गुड को इंक्रीज करना है तो दूसरे गुड को क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. क्वेश्चन इज दैट कैन वी शिफ्ट और चेंज द बजट लाइन? आवर आंसर इज यस. वी कैन चेंज और शिफ्ट द बजट लाइन. वी कैन चेंज इट टू द फॉरवर्ड और मूव टू द बैकवर्ड. व्हाट इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड? Backward is if the budget or income is increases. So if you want to move your budget line ahead, आप अपनी budget line को आगे लेके जाना चाहते हो तो आपको budget and income को increase करना पड़ेगा. If in any case your budget and income is decreased, तो आपकी जो curve होगी, जो slope होगी, वो किस तरफ जाएगी? Backward होगा. So you can see here that's slope. This is the normal budget set. अगर आपकी income एंड बजट इंक्रीज होती है तो आपकी जो बजट सेट है वो फॉरवर्ड चली जाएगी. अगर वो कम होती है तो कहाँ चली जाएगी? बैकवर्ड. सो यस, वी कैन मूव द बजट लाइन. वी कैन मूव इट टू द फॉरवर्ड और वी कैन मूव इट टू द बैकवर्ड. वी कैन शिफ्ट इट. फॉरवर्ड क्या होता है? जब हमारा बजट एंड इनकम इंक्रीज हो जाता है तब हम अपनी बजट लाइन को आगे ले जाते हैं. एंड बैकवर्ड क्या होता है कि जब हमारा बजट एंड इनकम डिक्रीज हो जाता है तब हमारी बजट लाइन क्या हो जाती है? पीछे चली जाती है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है. बजट लाइन अकॉर्डिंग टू दिस डेटा हमारी इनकम कितनी है? 100. पीएक्स कितना है? 5. पीवाई कितना है? 4. लेट्स से जो हमारा पीएक्स है वो इंक्रीज हो जाता है 7 पर. सो डेफिनेट सी बात है कि हम महंगा प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे. तो जो हमारी बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, सेम ही रहेगा वाई गुड्स के साथ में. लेट्स से अगर वाई गुड्स 4 से 5 हो जाता है तो जो स्लोप है वाई का वो क्या जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा. अगर 5 से कम होकर 3 हो जाता है डेफिनेटली हमारा जो ग्राफ है वो भी थोड़ा चेंज होगा और जो लाइन है वो भी इस तरह ड्रॉ की जाएगी. ये है इंक्रीज्ड की. So students, this was all about today. We have learned about budget set, budget equation, explanation of budget line or price line, and can we move or shift the budget line and the rotation of the budget line. I hope you've understood the whole concept. If you have any sort of problem, please do message me. Thank you so much.